आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। We have already studied what is meant by electric charge and electric field and electric potential. We also know that if there are 2 points in the electric field, one point has got higher potential and one has got lower potential, high potential and low potential. Then the electrical charge will move from higher potential to lower potential. That we have done. Now, let there be a conductor. See, there are 3 types of material. One which allows the charged particle to move freely, we call it conductor. The other which do not allow it to move it freely, we call it insulator. And there is a third one we call semiconductor, that we will study later. So, if there is a conductor here and we spread an electric field in it, putting a high potential at this point and low potential at this point, then what will happen to the charged particles which are present here? The charged particle will move from higher potential to lower potential if all other conditions are meeting out. This motion of the charged particle is known as electric current. Now, which are the charged particles which can move? We know the smallest charged particle, the lightest charged particle, the fundamental charge is with electron. So it is electron which will move. If there is a potential difference like this, high potential, low potential, that means there is an electric field in this direction. And if there is an electric field in this direction, the electrons in it will move from this direction to this direction. Electrons, because they have got negative charge, they will be attracted to higher potential, positive charge. This is low potential. So they will move towards positive charge. So this is motion of the charged particles, and motion of the charged particles make electric current. So we say electric current is flowing through it. Now, there are 2 words and we have to differentiate between them. One is the motion of electron and one is electric current. Motion of electron, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स मूव. एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट. सो वी से देयर इज ए इलेक्ट्रिक करंट इन दिस कंडक्टर. अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या हमने उसका कोई यूनिट बनाया हुआ है? द आंसर इज यस. इलेक्ट्रिक करंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हम उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? यहाँ से जो भी पार्टिकल चल रहे हैं जो कि चार्ज को लेकर चलते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हो, दूसरे मटेरियल भी हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन हमने वो डिस्कस किया है जब हम यहाँ पर मेटल लेते हैं. अगर मेटल की जगह हमारे पास लिक्विड हो, गैसेस हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो ये चार्ज मटेरियल दूसरे पार्टिकल भी हो सकते हैं. हम ऐसा कोई भी पार्टिकल जो चार्ज को लेके मूव करता है उसको चार्ज कैरियर कहेंगे. चार्ज कैरियर. और वो चार्ज को लेके मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है. ये चार्ज कैरियर मेटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ये लेकिन अगर लिक्विड हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड्स, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड्स यानी कि सोडियम क्लोराइड, उसका सॉल्यूशन H2O, जिसमें H और OH ये 2 तरह के चार्ज पार्टिकल होंगे. NaCl में Na
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और Cl नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये होंगे। तो इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन ये चार्ज के साथ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव ऐसे चलते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलेगा। तो ये जितने चार्ज पार्टिकल जो चार्ज को लेके मूव करते हैं उसके लिए हमने कैटेगरी क्या लिखी है, चार्ज कैरियर्स। तो मेटल में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड्स में आयंस होते हैं। आयंस, ये आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, HCl, तो इसमें जो H है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम एक HCl एक बर्तन में भर देंगे और उसमें बैटरी लगा के करंट फ्लो कराएंगे, बैटरी क्या करेगी, एक तरफ हायर पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल लगाएगी। तो हम क्या देखेंगे कि उसमें जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सब मूव करते हैं ऐसे, इधर से इधर, और जो हमारे पास HCl के आयंस हैं, Cl आयंस, वो Cl आयंस सब इधर से इधर मूव करते हैं। Cl निगेटिव वो इधर मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, पॉजिटिव या निगेटिव? तो आंसर है दोनों बनाते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है। ये अगर इलेक्ट्रिक करंट कुछ बनाता है उसकी स्ट्रेंथ I1 है और इसकी स्ट्रेंथ I2 है, तो हम बोलेंगे इसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो I1 प्लस I2 है। ओके, अब इसमें हमको एक चीज ये समझनी है कि ये चार्ज पार्टिकल प्लस वाले इस तरफ जाते हैं, माइनस वाले इस तरफ जाते हैं। तो क्या ये दोनों करंट की डायरेक्शन अलग अलग है या इस दोनों को करंट की एक ही डायरेक्शन बोलते हैं? तो इसके लिए देखिए, जब हम करंट की डायरेक्शन ये वर्ड यूज करते हैं तो हमने नियम बनाया है कि करंट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन मानी जाएगी जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन करंट के चलने की डायरेक्शन होती है। लेकिन मेटल्स में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? उसमें तो पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करते। तो उसके लिए हमने ये माना कि जो इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है, हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज उससे उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसे? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, इसे देखिए। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये एटम्स हैं। हर एटम का नेट चार्ज 0 होता है, हमें मालूम है, क्योंकि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। एटम के पास जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूक्लियस में और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूमते हैं। तो ये दोनों इक्वल रहेंगे तो उसका नेट चार्ज 0 रहेगा। अगर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन दिया तो नेट चार्ज नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो नेट चार्ज पॉजिटिव। अब इसमें हमने देखिए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगाया पॉजिटिव प्लेट, सेल का पॉजिटिव, और यहाँ लगाया नेगेटिव। जब हम यहाँ पॉजिटिव लगाते हैं तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके चला गया, तो यहाँ क्या बचा? प्लस। और ये कैसा है? 0 0 0 0 0। ठीक। अब उसके तुरंत बाद क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को खींचता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें से एक नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट सेल की भी लगी हुई है, ये भी पॉजिटिव बन चुका है। इन दोनों की ताकत इतनी होती है कि इसमें से एक माइनस को खींच ले। जब ये इसमें से माइनस को खींचते हैं तो माइनस और प्लस मिलके ये क्या बन गया? 0।
इसमें से माइनस इधर आ गया तो ये क्या बना, प्लस, और ये 0 0 0। इलेक्ट्रॉन किधर जंप किया, ये ऐसे। अब ये प्लस है, ये प्लस है, इसके लिए ये दोनों प्लस मिलके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। जब वो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऐसे आ गया। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आया तो हमने ये देखा कि ये इसका चार्ज जो पहले 0 था, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद प्लस हो गया, और ये क्या हुआ, 0 0। ठीक इससे अगले स्टेप में इसी बैटरी के फोर्स के कारण और इस प्लस के कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया। जब ये इधर जंप कर गया तो ये क्या हो गया, प्लस, ये फिर ये प्लस बना, और ये कैसा है, 0 0। अब ये प्लस और ये प्लस के इफेक्ट में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये 0 0 पॉजिटिव। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये प्लस, इधर हमने बैटरी का माइनस लगाया हुआ है, ये माइनस इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये वाला प्लस इसको खींचता है, ये माइनस इसको धक्का देता है, प्लस माइनस को, ये माइनस इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मजबूरन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ चला गया। आई विल मेक इट क्लियर। ये प्लस था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ आ गया। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ आ गया तो यहाँ का चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए प्लस कहाँ है, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। प्लस किधर जा रहा है, अगर आप इसको फुर्ती से एक नजर देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि प्लस ये ऐसे जा रहा है, जबकि एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही है, एक्चुअल प्रोसेस ये हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, तो मूव कौन कर रहा है, मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा है। किस डायरेक्शन में कर रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर हमको दिखता क्या है कि ये पॉजिटिव, ये मेरे लेफ्ट में मूव कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, जबकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। हमको क्या दिखता है कि पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं, और ये सच है। तो इससे हमको एक चीज समझ में आई, या हमने डिसाइड की कि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज के इधर आने की डायरेक्शन। जबकि हमको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल मूव नहीं करता, हाँ, पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन चेंज होते जा रही है। तो हमने ये डिसाइड किया कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, हमारा नंबर लाइन सिस्टम मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि 0 लिख के हम उसके बाद +1 +2 +3 +4 ऐसा लिखते हैं, और वो नंबर लाइन की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर प्लस किस तरफ बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं प्लस इस तरफ बढ़ रहा है। तो चूंकि प्लस इस तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम करंट की डायरेक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ बढ़ रहा है। तो इन दोनों में से एक चीज हमको चॉइस करनी है कि हम करंट की डायरेक्शन किसको कहेंगे। तो हमने डिसाइड किया जिधर पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज होते हैं वो करंट की डायरेक्शन कही जाएगी, क्योंकि नंबर लाइन से जिधर पॉजिटिव बढ़ता है वो नंबर लाइन की डायरेक्शन होती है। तो इसे हम कहेंगे करंट डायरेक्शन। करंट डायरेक्शन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। तो ये अब हमने याद कर लिया, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इज opposite
टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोशन और इंक्रीज। तो इसमें हम देखते हैं पार्टिकल चले या ना चले, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट चला गया, इसलिए करंट की डायरेक्शन इस तरफ मानी जाएगी, करंट डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ। और ये नियम हमेशा के लिए हमने याद कर लिया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलता हमेशा कौन है? इलेक्ट्रॉन, दैट इज ट्रू। लेकिन पोजीशन किसकी चेंज होते जाती है? पॉजिटिव चार्जेस की। यही चीज हमको कंडक्टर्स में मिलती है, सेमीकंडक्टर्स में मिलती है और सब चीजों में मिलेगी। ओके, तो ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमने देखी। अब करंट कब हैवी करंट होती है, कब लाइट करंट होती है, करंट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर मान लो हमने एक गेट लगा दिया और इस गेट पर हम खड़े हो गए और काउंट करने लगे घड़ी चला के। काउंट करते गए, एक चार्ज पार हुआ, दो चार्ज पार हुआ, तीन चार्ज पार हुआ। ये जो भी चार्ज इसमें चल रहे हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हम एक सिंपल केस लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होते जा रहे कंडक्टर में, तो हर इलेक्ट्रॉन के साथ ई चार्ज पास होता है। ओके, हम काउंट करते गए और साथ में टाइम भी देखते गए। दो चीजें एक साथ बदली। ये दोनों चीजें कौन कौन सी हैं? टाइम और चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम बीत रहा है। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव हो रहे हैं। वी डोंट डिस्कस इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या आयन है या क्या, व्हाटएवर इट इज। हमको मालूम है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक चार्जेस शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन हमने पकड़ा, यहाँ पर गेट सोचा और यहाँ पर हमने काउंट करना शुरू किया। घड़ी से यहाँ पर चार्जेस जा रहे हैं, हम गिनते जा रहे हैं, तो टाइम बीता टी, और उस टाइम के दौरान यहाँ से जो चार्ज पास हुए वो चार्जेस हैं क्यू। तो टी टाइम में क्यू चार्ज पास हो गया, तो एक टाइम में कितना चार्ज पास होगा? क्यू अपॉन टी। हर एक सेकंड में कितने चार्ज यहाँ से पार हो रहे हैं? क्यू अपॉन टी। एक दूसरा कंडक्टर हमने लिया, उस कंडक्टर में हमने क्या देखा? इस कंडक्टर में यहाँ खड़े हैं और यहाँ से भी हमने इसकी गिनती की, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड में 2Q चार्ज पास हो जाते हैं। एक सेकंड में 2Q अपॉन टी, तो यहाँ टी सेकंड में Q हो रहे थे, इसमें 2Q पार हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बड़ी तेजी से चार्जेस पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा है। नदी में पानी की जो करंट होती है, जो पानी का फ्लो होता है, ज्यादा कब होता है? जब एक सेकंड में ज्यादा पानी इधर चला जाए। तो इसका मतलब कि उसकी करंट बड़ी स्ट्रांग है। तो करंट स्ट्रांग कब होती है? जब नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन आर मोर देन द इलेक्ट्रिक करंट इज मोर। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का हमारा फॉर्मूला बना। इलेक्ट्रिक करंट का हमने सिंबल बनाया I। So electric current I is equal to Q upon T. What is Q? The charge is passing through any cross section. अब इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। Electric current at any cross section is the quantity of charge passing through per unit time. ये होती है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इसका फॉर्मूला I Q अपॉन T।
अब हम इसकी यूनिट फिक्स करते हैं। यूनिट, चार्ज की यूनिट हमको मालूम है कूलम। एक कूलम चार्ज कुछ चार्ज की क्वांटिटी होती है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर फंडामेंटल चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये फंडामेंटल चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और इसका साइन हमने क्या बना दिया? स्मॉल ई। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन पर होता है और इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन पार हो रहे हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये जो कूलम पर सेकंड ये क्या बन गया? करंट का यूनिट। लेकिन कूलम पर सेकंड बार बार बोलना, लिखना, कैलकुलेट करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने उसके लिए ना एक सिंगल नाम रख लिया, एक सिंगल वर्ड, एंड दैट वर्ड इज एम्पियर। एम्पियर। सो एम्पियर इज unit of current. Unit of current is ampere. एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम किया था। उनके ऑनर में इसका यूनिट का नाम रखा गया एम्पियर। जब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे जैसे 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो सिर्फ सिंबल लिखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, फिजिक्स में बार बार आएगी कि इसके जो यूनिट होते हैं फिजिक्स में, उसमें प्लूरल नहीं होता, बहुवचन नहीं होता। इफ इट इज 1 यूनिट ऑफ करंट, इट इज 1 एम्पियर। इफ इट इज 3 यूनिट्स ऑफ करंट, देन ऑल्सो इट इज 3 एम्पियर। एम्पियर्स नहीं बनेगा, ताकि हमको उस एस से कंफ्यूजन मत हो, इसलिए इसको हमेशा सिंगल ही रखना है। ओके, इसका सिंबल है ए, सिंबल ए, लेकिन ए जो है वो कैपिटल रहेगा। जब आप एम्पियर लिखेंगे तो एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, और इंग्लिश में हमको ये सिखाया जाता है कि साइंटिस्ट के नाम को, किसी भी नाम को कैपिटल से स्टार्ट करना है। लेकिन फिजिक्स में हमने वो नियम हटा दिया, कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना है। फिजिक्स में जब भी नाम लिखा जाएगा यूनिट के लिए, भले हम लिखें न्यूटन, एम्पियर, जूल्स, ये सब यूनिट हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के, लेकिन सब के नाम स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे। तो जब एम्पियर पूरा लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा, जब उसका सिंबल लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, कैपिटल। ये हम सब ने आपस में एग्री किया और ऐसा ही आगे से किया जाएगा। राइट। तो अगर करंट इसमें हमने देखा 3 कूलम पर सेकंड होती है, या एक क्रॉस सेक्शन में हमने देखा कि 10 सेकंड टाइम लगा और उसमें से 30 कूलम चार्ज पार हो गया, तो करंट कितनी हुई? 30/10 दैट इज इक्वल टू 3, और इसको क्या लिखेंगे? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल लगा दिया, 3 एम्पियर। तो ये होता है एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर करंट कितनी होती है? जब यहाँ से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पार हो रहा होगा, उस समय जो उसकी धारा बनेगी, उस समय जो करंट बनेगी, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। So let's write definition of 1 ampere current. What is 1 ampere current? तो इसका आंसर लिखिए। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर।
कब होगा ये? When 1 coulomb charge pass through a cross section in every 1 second. हर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होता है, देन इट इज दिस। तो करंट का फॉर्मूला हमें क्या मिला? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। किस तरह से? इसमें से एक्चुअली चार्ज पार्टिकल कौन सा पार हो रहा है? तो अगर ये मेटल कंडक्टर है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पार होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? स्मॉल ई। तो हम यहाँ खड़े हो गए और हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करने शुरू किए और हमको ये पता लगा कि इसमें से 1 सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन पार हो गए या t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन पार हो गए, टाइम t सेकेंड। और ये इलेक्ट्रॉन कितने पार हो गए? n। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि करंट किसके बराबर होती है? Q अपॉन T। और हमने गिना किसको? n इलेक्ट्रॉन्स। हमको ये मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो होता है दैट इज स्मॉल e। तो कितना चार्ज पार हुआ होगा? तो चार्ज Q किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एनी चार्ज डिवाइडेड बाय T। तो ये हमको एक दूसरा फॉर्मूला मिला, दैट इज NE अपॉन T। जो 1 सेकंड में इतना चार्ज पार हुआ, इसलिए ये क्या है? करंट। दिस इज इक्वल टू I। तो I का एक फॉर्मूला और हमें क्या मिला? I इज इक्वल टू NE अपॉन T। अब हमको एक क्वेश्चन मिला दैट इन ए कंडक्टर a large number of electrons are passing through it and the number of electrons is 3.2 into 10 to the power 19. So many electrons are passing in 1 second. Then what is the current flowing in it? तो हम क्या करेंगे? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार हो रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे और यहाँ पर जो टाइम हमको दिया गया, अगर 1 सेकंड दिया गया तो 1 लिख देंगे और अगर 5 सेकंड लिखा तो 5, जो भी दिया गया उसको लिखेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर, दैट वी हैव स्टडीड। सो दिस इज electric current calculation in a conductor. So what we have studied in this lecture, electric current कब फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक करंट कौन फॉर्म करते हैं, चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं। तीसरी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसमें जो मूव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसको बोलते हैं। किस तरह से हमको ये लगता है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं जबकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। सो वी हैव स्टडीड डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, हाउ द करंट इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट इट विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप करंट इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर में हमारे कहने से करंट फ्लो नहीं होती, उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो हमको फुलफिल करनी होती हैं। वो कंडीशन जब पूरी होती हैं तभी उसमें करंट फ्लो होती है। दैट इज ए मस्ट टू स्टडी कि करंट कब फ्लो होगी, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी। अनदर थिंग वी विल स्टडी दैट व्हेन द चार्जेस आर मूविंग, then what is the speed of those charged particles which are moving, and then we will study how much is the energy being carried by the current. These three things we will study in the next lecture. Thank you.